Welcome students. Welcome to the lecture number 10 of chapter Conditional and Looping Constructs. In the previous lecture, I explained you about the concept of the nested loop and what is the basically order of execution of the nested loop. I have explained you in the previous lecture this one. Okay. So now with the help of that concept of nested loop, today we are going to do some questions regarding the topic named as pattern printing. Okay, so the topic for today is basically the pattern printing. So let me first draw a pattern for you. Okay, so that after that we can see that how we can make the program for that pattern. 4 star 1 2 3 1 2 and then a single star. Okay, so let me just increase the size of it so it appears clearly to you. Okay, so now I have to draw this pattern. Okay, so I want a program in which the user gives a number of lines. That right now in this pattern there are 4 lines. Okay, 1 2 3 4 lines. Okay, so I want to make a program in which the user gives the number of lines, and then a star triangle will be printed up to the specified number of lines. Okay, so how I am going to do this question? So let me explain you the working scenario in this case. Suppose if the user has given the value of n is 4, n means for the number of lines. Okay, so in this case the number of lines is 4. So basically today I am going to explain you a logic concept that how you are going to deal with these kind of questions. ठीक है, if you want to learn any kind of programming language, ठीक है, when you go to colleges वहाँ पे भी आप कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखेंगे. ठीक है, if you choose the computer science stream, right? So जब आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस करेंगे या कुछ भी करेंगे, so in that case आपको ये पैटर्न प्रिंटिंग का टॉपिक हर बार आएगा. ठीक है जी. अब बच्चे जो होते हैं ना वो बेसिकली इस पैटर्न प्रिंटिंग के टॉपिक को लेके बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज उनसे ना ये क्वेश्चन बनाने बड़े मुश्किल लगते हैं उनको. Reason is that because once they see the question they straight away start making the program of that question. लेकिन मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आपके पास एक क्वेश्चन है, फर्स्ट मेक द लॉजिक ऑफ दैट क्वेश्चन, और वंस द लॉजिक इज रेडी विद यू देन यू स्टार्ट मेकिंग द प्रोग्राम. ठीक है, सो आज हम ये देखेंगे कि इस तरह के जो पैटर्न्स बनाने के क्वेश्चन जो होते हैं, व्हाट इज द बेसिक लॉजिक फॉर इट, कि भाई उसको बनाने के लिए हम कैसे सोचें, क्या लॉजिक अपने माइंड में लगाएं. एंड आई टोल्ड यू कि अगर आप उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली अगर इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश करोगे देन यू विल डेफिनेटली एंजॉय दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दैट लॉजिक. सो वेन एवर यू गॉट एनी पैटर्न ऑफ एनी डिजाइन, सो व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर अ टेबल फॉर इट. ओके, सो मैं यहां पे एक टेबल बना रहा हूं. द फर्स्ट column of that table is basically rows. Okay, and the second one is, अब आप देखो हर रो के अंदर अगर if you see that row means a line. Okay, so in every line you see there are stars, so the second entry is basically the stars, right? So अब हमें basically क्या करना है, we have to make a table जिसके अंदर फिलहाल ये 2 एंट्रीज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे, that is one is for rows and other one for stars. और अब हम यहाँ पे जो हमें पैटर्न दे रखा है इसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज को हम यहाँ पे प्लॉट करके देखेंगे. ठीक है, सो एज यू कैन सी दैट हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 लाइंस है ना, तो मैं यहाँ पे 4 रोज क्रिएट कर लेता हूँ. फर्स्ट रो ये, सेकंड ये, थर्ड ये, एंड द फोर्थ वन इज दिस. ठीक है, ये फर्स्ट वाली लाइन थोड़ी सी टेढ़ी सी आ गई है, सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट. ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर स्मूथ सी लाइन बना देते हैं हम यहाँ पे. सो आई हैव
chosen the paint brush and I prepare this line. Okay, so अब मैं एक टेबल डिजाइन करने जा रहा हूं. In that table there is a row and star. These are two columns. ठीक है. अब देखो, suppose I have taken a variable a and assigned the value of a to 1. So a is equal to 1 represents the first row. Okay, so this first row is represented by a is equal to 1. In the first row, how many stars are there? There is only one star. Okay. Now let's fill the next row entry. A is equal to represent the second number row. Okay. And in the second row, how many stars we have to print? We have to print only 2 stars. Okay. And similarly, when we take A is equal to 3, that is for the third row. In the third row, we have to print 3 number of stars. And A is equal to 4, that is fourth row. And in the fourth row, we have to print 4 stars. Okay. So now my table is basically ready. After preparing this table, how I am going to set the logic for the program? देखो, just remember कि ये जो loop वाला, ये जो row वाला loop होगा, this is always be the main loop. Okay, or we can say the outer loop. So the rows loop is always be the main loop. और उसके बाद जितने भी loops, जितने भी चीजें आएंगी हमारे सामने, that अभी फिलहाल हमारे सामने stars का केस है, so this will be considered as the inner loop. Okay, right. Now अब यहाँ पे आप हमेशा ध्यान देगा कि जो मेन लूप है that will run from 1 to the last value, that is 4. ठीक है. So हमें मेन लूप जो है वो एक की इनिशियल वैल्यू से लेकर जो हमने लास्ट वैल्यू दे रखी है 4 वहां तक चलाना है. सो इट मीन ये जो हमारा मेन लूप है, दैट इज रो वाला लूप, ये हमारा 1 से लेकर 4 तक चलेगा. और वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ 4 इज बेसिकली बिलोंग्स टू दिस n वेरिएबल. सो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा रो का लूप जो है वो 1 से लेकर n तक चल जाएगा. ओके, सो वी आर गोइंग टू रन दिस रो लूप फ्रॉम 1 to n बेसिकली. ठीक है. नाउ व्हाट अबाउट दिस स्टार लूप? अब ये स्टार वाला जो लूप है ये हमारा 1 से है, ये इनर लूप, लेकिन ये 1 से लेकर कहां तक चलेगा? नाउ वी हैव टू डिसाइड इट. अब जरा आप यहां पे देखो, व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज 1, वी हैव टू प्रिंट ओनली 1 स्टार. इसका मतलब जो लूप है वो सिर्फ एक बार चलना चाहिए. बट व्हेन द वैल्यू ऑफ 2, a इज 2 फॉर द सेकंड रो, इन दैट केस वी हैव टू प्रिंट 2 स्टार्स. ठीक है. सो इसका मतलब जो स्टार प्रिंट करने वाली स्टेटमेंट है, वी हैव टू रिपीट इट ट्वाइस. And when the a is 3, so we have to print the star 3 times. So मैं यहाँ पे एक नोटिस कर रहा हूं कि भैया जो a की वैल्यू है मुझे स्टार्स उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही प्रिंट करने. तो यानी कि स्टार को प्रिंट करने वाली स्टेटमेंट उतने नंबर ऑफ टाइम्स ही रिपीट होगी ना. सो वी विल रन दिस लूप फ्रॉम 1 to a. ठीक है. सो हमने ये लूप तैयार कर दिया यहाँ पे. सो मेन लूप हमारा बिगिंस फ्रॉम 1 to n, एंड जो सब लूप है वो चलेगा हमारा फ्रॉम 1 to a. सो एक काम करते हैं, अब ये लॉजिक बना दिया मैंने, ये टेबल बना दिया एंड देन लूप्स के सीक्वेंस सेट कर दिए. अब इसको प्रोग्राम में हमने कैसे लिखना है, वी विल सी इट. सो मैं अपना पाइथन का एडिटर खोल लेता हूं एंड देन आई राइट द कोड विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल विच इज गिवन. सो आई गो टू फाइल, न्यू फाइल, राइट. सो द न्यू फाइल इज ओपन फॉर मी. नाउ I have to write the program with respect to this logic which is developed by me. Okay. So let's begin with the program part. First we have to take the value of n. Okay. Because n represents the number of lines. So first we have to take the value of n from the user. So we'll write int input, enter the number of lines. Okay. So we are going to take the number of lines from the user first, right? So now we have the number of lines value from the user. Now how I am going to write the nested for loop according to this table? As I told you that the rows will be treated as the main loop, okay? And we see that we have to run it from 1 to this one, okay? So main loop will be executed from this first value to this last value, and the stars will be considered for each row individually. So the first one is we have to run the main loop from 1 to n. So for a in range 1 comma
if I want to run the loop n number of times, so obviously I have to write n plus 1, because if I write n and the value of n is basically 4, so it will run from 1, 2, 3 times only, but we have to run it 4 times now. So that's why I have written n plus 1. Okay, I hope you understand this thing. Now, this is my outer loop. Now I have to write the inner loop, that is this one, for the star. So for that I have written for b in range, and I have to run this loop from 1 to a. So I will write it like this, 1 to a plus 1. Okay. So under this loop, what I have to do, I have to basically print the star. That's it. But I know that the default value of AND option in the print is basically /n. So after printing every star, the cursor moves to the next line. But you can see that if I want to print this kind of pattern, then I have to hold the cursor at that line only. So I have written AND is equal to space. Okay, क्योंकि आप जानते हैं कि भैया एंड में जो प्रिंट ऑप्शन होता है उसमें एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, /n है. सो अगर एंड को नहीं मेंशन करोगे तो क्या होगा ये कि ये ऐसे जैसे एक लाइन में मुझे यहाँ पे 2 स्टार दिख रहे हैं, तो ये वाला काम कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कभी भी ये एक सिंगल स्टार प्रिंट करेगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा. ठीक है. सो इन स्पाइट ऑफ दिस पैटर्न हमारे पास एक स्टार्स की लंबी सी लाइन आ जाएगी बिल्कुल, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें तो इस पैटर्न में चाहिए ना. सो दैट्स वाई मैंने यहां पे लिखा एंड. अच्छा, वंस दिस डेटा प्रिंटिंग लूप इज ओवर, देन व्हाट आई हैव टू डू, भाई जब एक लाइन के स्टार सारे प्रिंट हो जाएंगे तब मुझे कर्सर को ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना है. So for that I simply write this print statement, that is nothing I have to print. Why I have written this print? Because this print has default option for end is /n. ठीक है भाई, इस प्रिंट के साथ भी तो एक एंड ऑप्शन एसोसिएटेड है ना, और उस एंड ऑप्शन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, /n. सो जैसे ये बी वाला लूप खत्म होगा एंड कंट्रोल मूव्स टू दिस प्रिंट ब्रैकेट, सो द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो हमने ये कोड बना लिया. लेट्स फर्स्ट इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, and then I will explain you about the execution of this for loop. Okay, so F5, and then I will give the name to this program as P4. Okay, so P4 नाम दे दिया, and we'll see. सबसे पहले number of lines मांग रहा है. Suppose मैंने इस बार ज्यादा number of lines दे दी, suppose 7 lines दे दी. So you can see that इस तरह का stars का pattern हमारे सामने आ गया. Okay, so let's explain you the concept behind this code. So मैं इस कोड को जस्ट यहां से कॉपी कर लेता हूं, एंड आई सिंपली पेस्ट दिस कोड इन माय पेंट ब्रश साइट. ओके, so now I have pasted this code, and let me just decrease the size of this code. Okay, so now, so this is the code. So let us execute this code one by one. So first thing is that first it will ask you the number of lines. Suppose the number of lines given by the user will be suppose 4. So n, the value of n is 4, right? So we know that that for a in range 1 comma n plus 1, as the value of n is basically 4, so it will be 4 plus 1 5, and we know that in this case we get a list that is 1 2 3 and 4. Okay, so because the value of n is 4, so 4 plus 1 is 5, so it's 1 comma 5. So जब यहाँ पे रेंज में 1 comma 5 लिखा होगा तो ये 1 2 3 4 तक की लिस्ट जनरेट करेगा. ठीक है. सो लेट्स सी कि भी क्या क्या होता है अब इसके अंदर. एंड ये एरिया हमने रिजर्व कर लिया. यहाँ पे इस एरिया के अंदर हम लोग जो स्टार्स का जो भी पैटर्न होगा वी विल प्रिंट ओवर देयर. ठीक है. सो नाउ जैसे ये लूप स्टार्ट होगा, फर्स्ट क्या होगा, सबसे पहले a वेरिएबल विल गेट द वैल्यू 1. ठीक है. तो फर्स्ट वैल्यू जो है इसकी, हमारे लूप की जो फर्स्ट वैल्यू है, दैट इज ये 1 वैल्यू. दिस 1 वैल्यू गेट असाइन टू द वेरिएबल a, एज यू ऑल नो दिस थिंग. अब क्या होगा, सो a को एक वैल्यू मिल गई. नाउ आफ्टर गेटिंग इट्स वैल्यू, अब वो लूप के अंदर आ जाएगा एंड द b लूप बिगिंस. अच्छा, अब पहले जरा ये देख लो, तो b बेसिकली इन रेंज a की वैल्यू हमारी 1 है, तो ये 1 कॉमा a प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा. सो a प्लस 1 कॉमा 2 का मतलब है कि बेसिकली इसमें भी एक लिस्ट जो जनरेट होगी हमारे रेंज फंक्शन में,
वो 1 से स्टार्ट होगी, 2 से कम तक रहनी है तो ऑब्वियसली वो 1 ही रहेगा, ठीक है। सो इन दिस केस सबसे पहले b को वैल्यू मिलेगी 1। सो जैसे इस रेंज फंक्शन ने सिर्फ एक ही एंट्री जनरेट करी तो पहले b के अंदर एक वैल्यू आ गई, सिंगल वैल्यू आ गई। सो b हैज सम वैल्यू, सो दैट्स वाई वो लूप के अंदर आ जाएगा। नाउ इट विल प्रिंट द स्टार फर्स्ट। सो ओवर हियर स्टार गेट प्रिंटेड, ओके। एंड नाउ वंस द स्टार इज प्रिंटेड, तो इसको प्रिंट करने के बाद एंड ऑप्शन ने उसको उसी लाइन पे रहने दिया, यानी स्पेस के कारण वो उसी लाइन पे रहा। एंड आफ्टर दैट द कंट्रोल मूव्स टू द बी लूप, राइट, एंड चेक्स फॉर द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ बी। बट as per the range function, the b will get no value this time, okay. So my b loop basically terminates, okay, and once this b loop terminates, then we are going to execute this print statement. So there is nothing to print, but the end option associated with this print is basically /n, so due to which the cursor moves to the next line. So in this case, whatever data will be printed, that will be printed from the next line, okay. So now this print work is also over, and after completing it, it moves to the outer loop, that is the a loop, right. So now what will happen? After that, a will get the next value, that is 2, and when it comes under, the b loop will run from b in range 1 comma. Now current value of a is basically 2, so a plus 1 is basically 3, okay. सो अब ये रेंज वाला फंक्शन कौन कौन सी वैल्यूज जनरेट कर देगा? इट विल जनरेट 1 and 2 ओनली, ओके। सो इन दिस केस b विल फर्स्ट गेट द वैल्यू 1, सो अंदर आएगा एंड देन इट विल प्रिंट द स्टार। सो यहां पे एक सिंगल स्टार प्रिंट हो गया। आफ्टर दैट फिर ये वापस एंड ऑप्शन ने स्पेस दिया, सो एक स्पेस यहां पे अटैच हो जाएगा। देन द कंट्रोल मूव्स टू द b loop, and then the b variable will get the next value, that is 2. So in this case also b is getting some value, so it comes down and it will print a star, okay. एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, और उसको प्रिंट करने के बाद फिर वो ये स्पेस यहाँ पे प्रोवाइड करेगा एंड देन अगेन कर्सर ऊपर जाएगा, बट एट दिस टाइम b will get no value, okay. So the b loop basically terminates, ठीक है जी, और बी लूप खत्म हो गया। देन प्रिंट वाला जो फंक्शन है ये कर्सर को यहां से नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। अगेन द कंट्रोल मूव्स टू द स्टार्टिंग ऑफ द मेन लूप, ओके। सो ओवर हियर द a will get the next value, that is 3, and b in range function will move from 1 to, so right now a's value is 3, so 3 plus 1 is 4. So basically a list is generated, there is 1 comma 2 comma 3, right. So now after that the value of b is 1. When this loop executes, the value gets the b value as 1, so it comes down and it prints the star, okay. After that again it moves up. Now the b will get the next value 2, okay. Then the control comes down and it will print the second star, right. So okay, just yes, right. Then again it moves to the starting of the b loop. Now the b will get the third next value, that is 3, so it again comes down and it will print the third star over here, right. So after that it again moves up, then but in this case b will get no value, so the b loop terminates, and then the print function will put the cursor to the next line, okay. Then after that again it moves to the main loop. So obviously now you can understand the main loop will get the value of a as 4 and b in range, this will be 1 comma 5, okay, because the value of a is 4. So in this case the range function starts from 1 2 3 and it moves up to 4, okay. So अब वही सेम टू सेम b को पहले 1 वैल्यू मिलेगी, सो व्हेन b विल गेट द 1 वैल्यू, वो क्या करेगा, इट विल प्रिंट अ स्टार ओवर हियर, ठीक है जी. देन इन द नेक्स्ट टाइम द b विल गेट द वैल्यू एज 2, सो द सेकंड स्टार विल गेट प्रिंटेड, ठीक है. तो यहाँ पे एक और स्टार आ गया. द थर्ड टाइम b विल गेट द वैल्यू एज 3, so the third star will get printed,
ठीक है जी, थोड़ा सा अलाइनमेंट में यहाँ पे ठीक कर देता हूँ यहाँ पे, और ये स्टार की थोड़ी सी अलाइनमेंट गड़बड़ हो गई, तो कोई बात नहीं, जरा मैं इसको रबड़ से रिमूव करके एक यहाँ पे स्टार और लगा देता हूँ, दैट इज स्टार। ठीक है, सो नाउ इट्स, उसको अलाइन कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, नाउ आफ्टर दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ बी विल गेट द वैल्यू 4, देन वंस मोर द लूप एग्जीक्यूट, ओके, एंड वन मोर स्टार इज प्रिंटेड, right? But after that, this b variable will get no value. Okay, so when this b variable will get no value, so the loop terminate and the print function will move the cursor to the next line. Then again it moves to the main loop, but when it moves to the main loop, the a will get no value. So the main loop also terminates. So in this way, we get a triangular pattern with the help of this symbol stars. Okay, so this is basically the execution part of it. So I hope you understand about this. So let's do some other question also. So this is basically the code of this pattern. So let's do the next question. Okay, so so first I will design the code for you, the pattern for you, right? And let me choose this one so that pattern will be clearly visible. 1 2 3 4, one space, 1 2 3, enter, 1 2 space, then 1 2, again moves, 1 2 3, then start. Okay, so now suppose we have to print this pattern. Okay, so as I told you that first you have to draw the table. So let's prepare first the table format for it. Okay, and in this table, first I want the area for the rows. Okay, just wait, the size is very large, so let me just reduce the size also. Okay, so let it be 20. So the first entry will be for rows, and now you can observe that because you know that ये भी printing जो भी होती है that is from the left side, and now इस टाइम पे क्या है कि जैसे फर्स्ट लाइन में जो स्टार प्रिंट हो रहा है, तो पहले इसके कुछ गैप आ रहा है, एंड आफ्टर गैप फिर स्टार आ रहा है। ठीक है जी, आप जैसे पहले वाले केस के अंदर क्या था कि लेफ्ट से ही स्टार प्रिंट होने शुरू हो गए थे, बट यहाँ पे पहले क्या, पहले कुछ गैप है एंड देन स्टार प्रिंट हो रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वी हैव टू मेंटेन द गैप ऑल्सो, सो हमें एक स्पेस का लूप भी लेना पड़ेगा, एंड स्पेस के साथ हमें उस लाइन में स्टार को भी मेंटेन करना है। सो हमारे इस टेबल के अंदर वी हैव 3 एंट्रीज विद अस। सो पहली एंट्री जो है हमारी रोज की होगी, एंड देन उसके बाद स्पेस की, एंड देन स्टार्स की। सो ये 3 कॉलम्स हमारे इसके अंदर बन जाएंगे। ठीक है, और हमें बेसिकली इन 3 कॉलम्स की पहले जरा एंट्रीज देख लें कि क्या क्या बन सकती हैं यहाँ पे। सो द फर्स्ट, मैंने जैसे बोला था जब हमें टेबल बनाते हैं तो फर्स्ट हम a इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं जानना चाहूंगा यार ये फर्स्ट रो के अंदर जैसे इसके अंदर स्पेस कितने हैं। अच्छा, अगर तुम यहां से देखो तो जैसे एक स्पेस इसका है, देखो यहाँ पे भी 2 स्पेस और ये 3 स्पेस, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट लाइन में पहले 3 स्पेस है फिर स्टार है। ठीक है ना, अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये देखो इस वाली लाइन, इसकी लाइन में भी स्पेस है, इसकी लाइन में भी स्पेस है, इसकी लाइन में भी स्पेस है। तो यहाँ पे पहली लाइन के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ स्पेस हैं वो कितने हैं हमारे पास, यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमारे 3 स्पेस हैं, और स्टार कितने हैं, जस्ट 1। ठीक है, अच्छा, जब उसके बाद a की वैल्यू हमारी हो गई दैट इज 2 हो गई, तो सेकंड लाइन में नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हो गए। अगर आप ध्यान से देखो सेकंड लाइन के लिए, जैसे फर्स्ट स्पेस हो गया, सेकंड स्पेस आ रहा है, तो सेकंड लाइन में नंबर ऑफ स्पेसेस 2 हैं, और अगर मैं स्टार्स की बात करूं तो उसमें नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं भाई, नंबर ऑफ स्टार्स उसमें 2 हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप आते हो a इज इक्वल टू 3 के लिए आ जाओ, दैट इज फॉर द थर्ड रो, तो उसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो थर्ड रो के अंदर नंबर ऑफ स्पेसेस कितने हैं। देखो तीसरी लाइन ये रही, इसके अंदर सिर्फ ये एक स्टार खाली है ना, तो यानी कि नंबर ऑफ स्पेसेस तो 1 है, और नंबर ऑफ स्टार्स कितने हैं, 3 स्टार्स हैं। ठीक है जी, और व्हेन वी टॉक अबाउट द लास्ट लाइन, तो उसके अंदर क्या है हमारे पास, a इज इक्वल टू 4। ठीक है,
सो इन दिस केस हम 0 स्पेस है हमारे पास, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टार्स है उस लाइन के अंदर वो कितने हैं, दैट इज 4 स्टार्स है। ठीक है, सो ये हमने पूरा टेबल भी डिजाइन कर लिया। नाउ अब हमें इस टेबल के अकॉर्डिंगली अपना लूप सेट करना है कि किस तरह से हमें अपना लूप बिगिन करना है। वी नो दैट इन दिस केस द वैल्यू ऑफ n इज बेसिकली 4। तो ये जो हमारा रो वाला लूप होगा ये तो मेन लूप होता है, और मैंने बोला ये मेन लूप आप 1 से लेकर यहां नीचे तक का देखिए कैसे चलाना है। तो ये 1 से लेकर हमें n तक ही चलाना होगा। अच्छा, अब जरा स्टार्स वाला लूप देखो, जैसे फर्स्ट जब a की वैल्यू 1 है तो मुझे एक ही स्टार प्रिंट करवाना है, जब a की वैल्यू 2 है तो स्टार प्रिंटिंग के लाइन को 2 बार रिपीट करना है, a इज इक्वल टू 3 है तो स्टार प्रिंटिंग वाली स्टेटमेंट को 3 बार रिपीट करना है। सो यहां पे मैंने 1 से लेकर, मुझे दिख रहा है जब a 1 है तो मुझे 1 बार, a 2 है तो 2 बार रिपीट करना है, 3 है तो 3 बार रिपीट करना है। तो सिंपल जैसे पहले किया था ये तो 1 to a चल जाएगा। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट दिस स्पेस लूप। ये स्पेस वाला लूप कैसे मैनेज होना चाहिए, ये 1 से लेकर ये कहां तक चलेगा, अब ये सोचना हमने बस। अब सोचो, देखो यहां पे वैल्यू, पहली वैल्यू आ रही 3 है। अच्छा सोचो मेरी नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, यहाँ पे 4 है, नंबर ऑफ लाइंस मेरी कितनी है, यहाँ पे 4 है, और ये पहली लाइन में 3 स्पेस आ रहा है। तो अगर मैं बोलूं कि यार ये पहली लाइन में 4 - 1 स्पेस आ रहे हैं, तो 4 - 1 मतलब क्या है, 3, सो 3 स्पेस आ रहे हैं। अब मैंने कहा कि यार ये सेकेंड लाइन में इसको मैं कह देता हूं यार ये तो 4 - 2 है, यानी 2 स्पेस आ रहे हैं यहाँ पे। थर्ड लाइन में मैंने कहा 1 आ रहा है, तो यानी कि अगर मैं इसको 4 - 3 कर दूं तो भैया इसका आंसर है 1, तो 1 स्पेस आ जाएगा। और फोर्थ लाइन के लिए अगर मैंने 4 - 4 कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, यानी नो स्पेस। तो मुझे एक एक्सप्रेशन यहाँ पे मिली सामने कि भैया जब फर्स्ट लाइन के लिए 4 - 1 करके जो वैल्यू आ रही होते हैं नंबर ऑफ स्पेस प्रिंट करो, सेकंड लाइन के लिए 4 - 2 करके जो वैल्यू आ रही होते हैं नंबर ऑफ स्पेस प्रिंट करो, देन 4 - 3 करके जो आ रहा है उसको। अब 4 क्या है हमारे पास यहाँ पे n, सो मैंने कहा यार मुझे यहाँ पे n-, अब n- कहां तक। अब देखो फर्स्ट जिस समय a की वैल्यू 1 है तो मुझे यहाँ पे 1 चाहिए इस एक्सप्रेशन में, जिस समय a की वैल्यू 2 है तो मुझे यहाँ एक्सप्रेशन में 2 चाहिए, जिस समय a की वैल्यू 3 है आई वांट दिस 3 ओवर हियर। सो यहाँ पे क्लियरली पता लग रहा है कि इसको 1 से लेकर n - a तक चला लो, देन हमारे पास वो पैटर्न आ जाएगा। सो लेट्स सी कि भी हम अपने प्रोग्राम के अंदर क्या चेंजेस कर सकते हैं इसके लिए। सो पहले तो ऊपर वही सेम दिया है, नंबर ऑफ लाइंस ले ली, ठीक है, एंड आफ्टर दैट जो मेन लूप है हमारा वो तो सेम रहेगा। तो अभी फिलहाल मैं नीचे का सारा मिटा देता हूं पहले। सो तो देखो वो मेन लूप तो हमारा वही 1 से लेकर n तक का है, वो n+1 कर दिया। नाउ अब हमें ये स्पेस का एक लूप चलाना है जो बेसिकली 1 से लेकर n - a तक चलेगा। सो फॉर दैट, फॉर b इन रेंज 1, अच्छा मुझे कहां तक चलाना है, n - a तक चलाना है, ठीक है। सो मैंने आपको बताया था जहां तक चलाना हो उसमें +1 कर दो बस, ठीक है, तभी उस तक चल पाएगा ये लूप। जैसे हम हर बार करें ना, जैसे n तक चलाना है तो हमने n+1 कर दिया, यहाँ n - a तक चलाना है तो हमने n - a +1 कर दिया, ठीक है जी। सो इस लूप के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ इस लूप के अंदर स्पेस प्रिंट करवाना है, ठीक है, और एंड ऑप्शन भी मैं यहाँ पे क्या कर दूं, स्पेस रख दूं, ठीक है। बट मैं इसको देखो जो स्पेस लगा रहा हूं यहाँ पे मैं जोड़ के लिख रहा हूं, उसमें गैप नहीं दे रहा मैं यहाँ पे, ठीक है। गैप क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे स्पेस के बाद एक और स्पेस नहीं चाहिए, सिंपल उसको ऐसे रखो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब मेरा ये वाला लूप खत्म हो गया ना, अब मुझे ये मेरा एक इनर लूप खत्म हो गया। अब ये इनर लूप जो है उस लाइन के अंदर नंबर ऑफ स्पेस मैनेज कर देगा। नाउ जब स्पेस प्रिंट करने का काम कंप्लीट हो जाएगा, देन मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्टार प्रिंट करने का काम करना पड़ेगा। सो फॉर मैनेजिंग दैट मुझे एक और फॉर लूप लगाना है जो 1 से a तक चले, तो ऑब्वियसली a+1 लिखेंगे हम। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, आई हैव टू प्रिंट स्टार्स, और यहाँ पे एंड इज इक्वल टू उसी लाइन पे रोकना है, तो इसको ऐसे दे दो यहाँ पे, ठीक है जी। सो ये दोनों काम हो गए। उसके बाद जब एक लाइन में जब फर्स्ट लाइन चलेगी तो फर्स्ट लाइन के सारे स्पेस ये प्रिंट कर देगा ये वाला लूप, और उसके बाद जब फर्स्ट लाइन के स्पेस सारे प्रिंट हो जाएंगे तो उसके बाद ये वाला लूप उस फर्स्ट लाइन के सारे स्टार्स प्रिंट कर देगा। और जब एक लाइन के स्पेस और स्टार सारे प्रिंट कर दिए, देन मुझे नेक्स्ट लाइन में मूव करना ना, सो फॉर दैट मैं लिखूंगा प्रिंट और ये से ब्रैकेट, ठीक है। सो दिस इज द कोड फॉर इट। सो जस्ट रन दिस कोड एंड सी कि भाई व्हाट विल बी द रिजल्ट।
number of lines, I will get 7 lines in it. So now you can see that कि भी हमारे पास इस तरह का ट्राइंगल पैटर्न आ गया है. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि भैया हमारे पास ये इस तरह से लाइंस क्यों आ रही हैं. ठीक है जी. ये ऊपर वाले जो पैटर्न है इसमें आप देख रहे हैं स्टार्स के बीच में गैप आ रहा है. क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे मैंने एंड में ना, जो एंड ऑप्शन था मेरा, इस एंड ऑप्शन में मैंने ऐसे स्पेस दे दिया था. ठीक है. अब देखो मैंने स्पेस दे दिया, तो देखो फिर जरा देखना, अब 7 वही दे दिया. अब आप देखो तो थोड़ा सा ये पूरा चेंज हो गया. क्योंकि अब चेंज इसलिए हो गया बिकॉज यहां एक स्पेस और एक्स्ट्रा इंक्लूड हो गया उसके अंदर. ठीक है जी. सो इसको हटा देना है हम लोगों ने, एंड देन उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे वी विल गेट द एप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है. जो जिस तरह का हमें पैटर्न चाहिए वी विल गेट दैट पैटर्न ओनली. सो इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है, हमारा ये जो कोड था, ये दिस इज द कोड फॉर दिस ट्राइंगल. सो आप इसको अपना नोट कर सकते हैं. आफ्टर दैट देयर इज वन मोर पैटर्न फॉर इट. सो उसको भी एक बार देख लेते हैं कि क्या है उस पैटर्न के अंदर भी. सो ये मैंने इसको रिमूव कर दिया, डिलीट कर दिया. नाउ अगेन मैं यहां पे इस पैटर्न को बनाने जा रहा हूं. सो 1 2 3 4 5. Just wait 6 7 1 2 3 4 5. One, two, three. ओके. सो मुझे अब ये ट्राइंगल प्रिंट करना है. ठीक है. सो आई होप आपको ये देख के समझ में आ गया होगा. जिससे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू मेक अ टेबल फॉर इट. ठीक है. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू मेक इज द टेबल. और जैसे टेबल के अंदर एंट्रीज जो बनेगी, एक तो हमारी बनेगी रोज की एंट्रीज. ठीक है. एंड आफ्टर दैट यू नो कि भाई अब हर लाइन में पहले स्पेस आ रहा है. सो सेकेंड एंट्री इज फॉर द स्पेस. और स्पेस के बाद उस लाइन में क्या प्रिंट हो रहे हैं, वी आर गोइंग टू प्रिंट द स्टार्स. सो द थर्ड एंट्री इज फॉर द बेसिकली द स्टार्स. ठीक है. सो ये हो गया हमारे लिए. एंड नाउ अब हमें फटाफट यहाँ पे जरा सा अपना लाइंस खींच लेता हूं मैं यहाँ पे. ठीक है. एंड उसके अकॉर्डिंगली अब जरा वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, सो दैट हम सोच सकें कि हमें किस वे में चलना होगा, किस वे में पैटर्न बनाना होगा. सो a इज इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट लाइन. सो सिंपल यहाँ पे आप देखते हैं एक स्पेस इधर से आ रहा है, एक स्पेस इधर और एक स्पेस इधर. सो स्पेस तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में 3 है. ठीक है. बट नंबर ऑफ स्टार्स यहाँ पे कितने हैं, जस्ट 1. एक स्टार ही है हमारे पास. नाउ इन सेकेंड केस द वैल्यू ऑफ a इज बेसिकली 2. इन दैट केस हमारे पास नंबर ऑफ स्पेस यहाँ पे हो गए 2, लेकिन नंबर ऑफ स्टार्स हमारे पास हो गए 3. ओके. सो व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज 3, सो इन दैट केस जो स्पेस है हमारे पास वो है एक स्पेस है, बट नंबर ऑफ स्टार्स हो चुके हैं हमारे पास 5. And when the value of a is 4, in that case we have 0 space with us, and but the number of stars कितने हो चुके हैं हमारे पास, that is 7. ठीक है. सो टेबल हमारा पूरा बन के तैयार हो गया. तो मेन लूप वाला जो टेबल है ये हमें पता ही यार, ये 1 से ये रोज वाला मेन लूप है. सो इट विल रन फ्रॉम 1 to n. ठीक है जी. स्पेस वाला अभी देखो 3 2 1 0 सेम स्पेस आ रहा, सेम वही पैटर्न है हमारे पास. सो ये बेसिकली जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने करा 1 to n-a तक चला देंगे इसको. ठीक है. तो स्पेस मैनेज हो जाएंगे. बट नाउ आफ्टर दैट अब हमें स्टार्स वाले को देखना है कि यार ये कैसे चलेगा, ये 1 2 कहां तक चलाएं. नाउ यू कैन सी दैट अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज 1 3 5 7. सो दिस इज बेसिकली द ऑड नंबर ऑफ सीरीज. तो याद है हमने सीरीज प्रिंटिंग जब कर रहे थे उसमें हमने इवन सीरीज एंड ऑड सीरीज दोनों प्रिंट करके देखी थी. सो इवन सीरीज के लिए हम लोग 2 into a कर देते थे, एंड ऑड सीरीज के लिए 2 into a-1 कर देते थे. सो अगर सपोज यहां पे a वाला जो वेरिएबल है इसके अंदर एक बार 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है. सो आई विल राइट 2 into a-1. ठीक है. सो अगर मैंने उसको ऐसा लिख दिया 2 into a-1, सो सिंपल से आप देख सकते हैं कि जिस समय सपोज मान लीजिए व्हेन द वैल्यू ऑफ a इज 1, सो 2 into 1-1 will result in 1. So this loop will run only one time. Okay. When the value of a is 2, so 2 into 2 that is 4 minus 1 that is equivalent to 3. So in this case the loop will run 3 times. So आप देख सकते हो
कि जब मैं ए की डिफरेंट वैल्यूज पुट कर रहा हूं तो आई विल गेट दैट वैल्यू जो मुझे जितने नंबर ऑफ टाइम्स मुझे स्टार प्रिंट करने का काम करना है. सो टेबल तैयार हो गया, लूप्स का सीक्वेंस भी तैयार हो गया. व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंपली पुट दिस थिंग इन द लूप. सो ओवर हियर यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज सेम. A loop is from 1 to n, so it is running from 1 to n plus 1. B loop is from 1 to n minus a, that is also running from n minus a. Now we have to manage this, the C loop, that is for star printing, that is 2 into a minus 1. Okay, so what we will write it like this, 2 into a minus 1, and I told you that मुझे यहाँ तक चलाना है तो just plus 1 साथ में और इसके लिखना पड़ेगा. ठीक है, so let's run this code. And I have given the number of lines as 7, so now you can see that we are getting a 7 lines of this star pattern. Okay, so this is basically the code for it, right? And one more important thing that I'm going to tell you, that suppose if I want to print the reverse image. Okay, so if I want to print the reverse image, this is the straight image. Okay, if I want to print the reverse image of this code, so how I can do that? In that case, you have to do one thing. Okay, when you are making the pattern, so in that case, when you are making the pattern for the reverse image, so always write the values of these row loops in the reverse order. Okay, so if it means if you are executing the reverse pattern of this image, then the first initial value of a will be, so in that case how we will write for the rows, the first a will get the value as 4, for the second row the a will get the value as 3, then third is 2, and last one is 1. Okay, so remember one thing, if you are making a reverse pattern, so always remember one thing, when you are making a reverse pattern, the row numbers, don't assign the row numbers from 1 to n, assign it from in the reverse order. Okay, like a first, for the first line, in spite of a is equal to 1, you will write a is equal to 4. In spite of a is equal to 2, you will write a is equal to 3, like this way. Okay, so now what is basically the changes that I have to do in this code? In spite of running this loop from 1 to n plus 1, I have to basically reverse this main loop only. That's it. So now what I'm going to do, in spite of executing this loop from 1 to n, I'm going to execute this loop from n to 1. So n, comma, as I want to execute it till 1, so I will write 0 over here and then minus 1. Okay, why 0? Because 0 लिखूंगा तभी ये 1 तक चलेगा. ठीक है, so let's run and see what will be the answer. I have given the number of rows as 7, so you can see that simple I will get the reverse triangle over there. Okay, so this is basically the simple logic for it. So I hope you understand about this. In all the previous images that we have done so far, if you simply just change the main loop, okay, just the main loop, change the order of the main loop, that's it, you will get all the images in the reverse order. Okay, so I hope you understand these things. So just practice all these questions and remember to print the reverse image of all the patterns which I have told you in this lecture. So thank you very much and have a nice day.